Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the solved question papers. These are all question papers of Federal Board. The first question is differentiate the following: atom and ion, B molecular ion and free radical. Answer A, difference between atom and ion. Atom, ion. आपने इसका टेबल बनाना है. What is an atom? An atom is the smallest particle of an element that may or may not exist independently in nature. Ion क्या होता है? The charged particle formed from an atom or chemically bonded group of atoms by adding or removing electrons. Examples: sodium atom and chlorine atom. Similarly, sodium ion जिसके ऊपर +1 चार्ज है and chloride ion जिसके ऊपर -1 चार्ज है. दूसरा है मॉलिक्यूलर आयन एंड फ्री रेडिकल. आपने लिखना है मॉलिक्यूलर आयन एक तरफ और दूसरी तरफ लिखना है फ्री रेडिकल. आपने लिखना है व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन्स द रिजल्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन. फ्री रेडिकल के बारे में लिखना है अ फ्री रेडिकल इज एन एटम विच हैज़ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड बियर्स नो इलेक्ट्रिकल चार्ज. फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें है नाइट्रोजन के ऊपर अगर प्लस चार्ज हो N2 के ऊपर तो इसको मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं. इसी तरह O2 के ऊपर अगर प्लस चार्ज हो बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन. सिमिलरली क्लोरीन रेडिकल एंड हाइड्रोजन रेडिकल, दीज आर द एग्जांपल्स. आपने इसी तरह से लिखना है. नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ 3.24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 एटम्स ऑफ आयरन. सिंबल इसका है Fe. इसका आपने सोल्यूशन लिखना है. सबसे पहले डेटा लिखेंगे. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन 3.24 इंटू 10⁻18. इसके बाद आपने लिखना है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मोलर मास ऑफ द आयरन, वो है 56 ग्राम पर मोल. अब आपने कंपेयर करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास को. तो 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर. इतने पार्टिकल्स या एटम्स जो आयरन के हैं वो 56 ग्राम होंगे क्योंकि इसका मोलर मास 56 ग्राम है. 1 एटम विल बी इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 और 3.24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 एटम्स विल बी इक्वल टू 3.24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 multiply by 56 over 6.022 into 10⁻23 and the answer is 30.12 multiply by 10⁻⁻5 grams. आपने इसको कैलकुलेट करना है या इसको आप लिख सकते हैं 3.012 multiply by 10⁻⁻4 grams. So these the 3.24 multiply by 10⁻18 atoms of iron has the mass equal to 3.012 multiplied by 10⁻⁻4 grams. Our next question is define mixture and a compound. आपने mixture और compound को compare करना है. What is mixture? An impure substance that contains two or more pure substances that retain their individual chemical characteristics is called a mixture. Compound का definition लिखेंगे. A compound is a pure substance that consists of two or more elements held together in fixed proportions by natural forces called chemical bonds. For example, salt plus sand, ये एक mixture होता है. Floating oil on water, that is also a mixture. इसी तरह से कंपाउंड का एग्जांपल्स हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन शेल्स एंड सब शेल्स. आपने शेल्स और सब शेल्स को डिफरेंशिएट करना है. तो अ सर्कुलर पाथ ऑन विच द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम रिवॉल्व अराउंड इट्स न्यूक्लियस आर कॉल्ड शेल्स. सब शेल्स क्या होते हैं? A shell can be further divided into energy levels called subshells. For example, K shell, L shell और M shell, these are called shells. और जो subshells के examples हैं S subshell है, P subshell है और D subshell है.
Question: define ionization energy, write its trends in groups and periods. आपने इसका आंसर इस तरह लिखना है कि टाइटल देना है आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर इसका डिफिनेशन लिखना है द अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required to remove an electron from the outermost shell of gaseous isolated atom is called ionization energy. Unit, इसका यूनिट है it is measured in kilojoules per mole. इसके ट्रेंड्स क्या हैं? in a group the ionization energy decreases from top to bottom in a group. In a period the ionization energy increases from left to right in a period. Next question: define isotopes, draw the atomic structure of isotopes of carbon. Isotopes क्या होते हैं? इसका definition आप लिखेंगे the different atoms of an element which have same atomic number यानी protons but different mass number that is neutrons and their nuclei are called isotopes. Isos means same, topos means place, so the isotopes have same place in the periodic table. इनको isotopes इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन तमाम का periodic table में place एक ही होता है, एक ही जगह पर हमने इसको place किया होता है. अब हमने वो करना है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 जो हमारे कार्बन के आइसोटोप्स हैं, इनके हमने स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं. तो आपने सबसे पहले इसमें लिखना है कि न्यूक्लियस, इसमें P = 6 यानी प्रोटॉन इसमें 6 होते हैं और न्यूट्रॉन्स आर आल्सो इक्वल टू 6. उसके बाद पहला शेल है, दूसरा शेल है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरे में आपने 4 इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं. कार्बन 13 को देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन्स 6 हैं and the number of neutrons is equal to 7. Because of different number of neutrons, these both are called isotopes. बाकी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम होता है जिस तरह के कार्बन 12 का होता है. अब हम ड्रा करेंगे कार्बन 14 और आप देख सकते हैं रेड कलर में कि इसमें 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन्स हैं. बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह के हमने ड्रा किया था कार्बन 12 के लिए और 13 के लिए. Explain the formation of covalent bond between two nitrogen atoms. इसका आंसर क्या है? Formation of N2 molecule. The electronic configuration of nitrogen is 1s2, 2s2, 2p3. There are 7 electrons which are placed in these orbitals 1s2, 2s2 and 2p3. Nitrogen atoms have 5 electrons in its valence shell. They need 3 electrons to complete its octet. Therefore, they share 3 electrons and form a triple covalent bond. Now, we will have to draw the structure of nitrogen atom. This is the first nitrogen atom. और हमने इसमें जो वैलेंस शेल है सिर्फ उसी को शो करना है, बाकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको शो नहीं करना है. इसी तरह दूसरा नाइट्रोजन हम ड्रा करेंगे. नाइट्रोजन के आखिरी शेल में इसकी भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब इन्होंने क्या करना है कि आपस के जो शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना होगा. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उनके लोन पेयर्स होंगे जो शेयर नहीं होंगे, जबकि जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरतीब से शेयर होंगे. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नाइट्रोजन की 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, अब दूसरे नाइट्रोजन की 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस तरह से ये तीनों मिलकर एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल मुकम्मल हो जाएगा. Briefly explain the formation of magnesium 2 ions and sodium 1 cations. Formation of magnesium 2 ions. Electronic configuration of magnesium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. आप देख सकते हैं कि थर्ड शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यही 2 इलेक्ट्रॉन्स इनसे निकाले जाएंगे. It loses 2 valence electrons to have complete octet and form a magnesium plus 2 cation. Magnesium gives magnesium plus 2 cation and it also releases 2 electrons. So the equation is Mg और हम आपने ड्रा करना है एरो. उसके बाद आपने लिखना है Mg plus 2 ion plus 2 electrons. Now we draw the structure of magnesium atom. This is the structure of
मैग्नीशियम एटम, जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको ड्रा किया जा रहा है। इसके आखिरी शेल में आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके आखिरी शेल में होते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम का बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह के पिछले में था। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके रिलीज़ हो चुके हैं और जो स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है इसके ऊपर अब +2 का चार्ज होगा। आपने इसके ऊपर +2 चार्ज भी लगाना है। Briefly explain the formation of magnesium and sodium ions. Now we draw the formation of sodium ion. Electronic configuration of sodium is 1:2, 2:2, 2p6, 3:1. It loses 1 electron to have complete octet and form a sodium cation. इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। इक्वेशन लिखेंगे, सोडियम gives sodium +1 ion and 1 electron. अब हमने ड्रा करना है द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। तो सोडियम का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि पहले शेल में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये आखिरी इलेक्ट्रॉन इसका जा रहा है लास्ट शेल में। अब हमने इसका सोडियम आयन का स्ट्रक्चर ड्रा करना है। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम केटायन एंड 1 इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज्ड। Question: The boiling point of water at Mount Everest is 70 degrees C, while at Murre it is 98 degrees C. Explain this difference. Answer: The boiling point of liquids is directly proportional to the external pressure. The higher the external pressure, the higher the boiling point, and vice versa. Students, boiling point directly related होता है प्रेशर के साथ। प्रेशर ज़्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और प्रेशर कम हो तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। At Mount Everest, the boiling point of water is 100 degrees C. Reason: At Mount Everest, at the height of 8850 meters, the external pressure is 34 kilopascals. Therefore, water boils at lower temperature, that is 70 degrees centigrade. You should remember that the normal pressure is 101.325 kilopascals, यानी 101 किलो पास्कल होता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पे ये प्रेशर 34 किलो पास्कल होता है। कम प्रेशर की वजह से पानी कम टेम्परेचर पे बॉयल होगा एंड दैट इज़ इक्वल टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 2, एट मरी हेल्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 98 डिग्री सेंटीग्रेड। रीज़न: एट मरी हेल्स द एक्सटर्नल प्रेशर इज़ लेस देन 101.325 किलो पास्कल्स, देयरफॉर वाटर बॉइल्स एट lower temperature, that is 98 degrees centigrade. Differentiate among saturated, unsaturated and supersaturated solutions. तो आपने definitions लिखने हैं। saturated solution का definition है a solution which cannot dissolve more solute at a particular temperature is called saturated solution. For example, 1 liter of water contains 1 kg of sugar. सपोज करते हैं कि अगर 1 लीटर वाटर में हम 1 kg शुगर डिज़ोल्व करते हैं तो इससे इसका सेचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो सकता है। अब अनसेचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बनेगा? अ सोल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व मोर ऑफ द सोल्यूट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। मीन्स के इसमें अभी क्वांटिटी पूरी नहीं हुई और मज़ीद क्वांटिटी डिज़ोल्व हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स 0.5 kg ऑफ शुगर। ऊपर वाले में 1 kg था, सेचुरेटेड था। अब इसमें 0.5 kg है, कम है पिछले वाले से, तो इसलिए अनसेचुरेटेड होगा। सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन: अ सोल्यूशन विच कंटेन्स मोर ऑफ द सोल्यूट दैट इज़ कंटेन्ड इन अ सेचुरेटेड सोल्यूशन इज़ कॉल्ड सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। यानी इसमें सोल्यूशन जो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन है इसमें सेचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा क्वांटिटी होती है सोल्यूट की। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स 1.2 किलोग्राम्स ऑफ शुगर। इसमें शुगर की क्वांटिटी 1 kg से ऊपर है, लिहाजा ये सुपर सेचुरेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन: डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Oxidation: the process in which involves the loss of electrons by an element is called oxidation. For example, magnesium loses 2 electrons and make a cation. This is called an oxidation process. Reduction: the process which involves the gain of electrons by an element is called reduction. For example, oxygen gains 2 electrons and make an oxide ion. This is a kind of reduction.
ओ ऑक्सीजन का एटम जो है इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट बिकम्स O-2 यानी ऑक्साइड आयन, सो इट इज़ अ रिडक्शन प्रोसेस. Define diffusion and effusion of gases. Write an example also. Diffusion and effusion, आपने इसके definitions लिखने हैं. The movement of gas molecules from the region of higher concentration to the lower concentration is called diffusion. Diffusion का definition इस तरह से है: the movement of gas molecules from the region of higher concentration towards the lower concentration. और जो effusion का है, the escape of molecules of a gas through a very small hole one by one without collision is called effusion. अब हम इसका लिखेंगे examples. For example, जो डिफ्यूजन का एग्जांपल है वो है परफ्यूम स्प्रेड इन रूम. आप जब परफ्यूम करते हो तो इसकी खुशबू फैल जाती है कमरे में, ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है. रोज़ फ्रेगरेंस स्प्रेड इन एयर, इसी तरह जो गुलाब की खुशबू है वो भी फैल जाती है एयर में. दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन. एग्जांपल्स ऑफ इफ्यूजन: टायर पंक्चर, टायर जब पंक्चर होता है तो या जो उसका ट्यूब होता है उसमें से आहिस्ता आहिस्ता जो हवा निकलती है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ इफ्यूजन. अ गैस बैलून लूजेस गैस एंड बिकम्स स्मॉलर, गैस जो बैलून्स होते हैं जिसके अंदर कोई गैस भरी हुई होती है, अक्सर वो जब उसके अंदर से गैस निकल जाती है तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ इफ्यूजन. Thanks for watching this video. If you like this video, please share it, watch it again and again. And if you have not subscribed my channel, please subscribe it. Thank you for watching.